How many branches and nodes does the circuit have? Identify the elements that are in series and in parallel. 5 branches हैं ठीक है, क्योंकि 5 elements हैं, तो in its most simplest definition a branch is the same as an element. ठीक है, so 1 2 3 4 5 branches, 5 elements. Okay, उसके बाद how many nodes does the circuit have? This is one node, ये एक redundant node है, ये एक ही node है. ठीक है, so this is just one node, this is another node, and this is a third node. So there are just 3 nodes in the circuit. Identify the elements that are in series and in parallel. The 1 ohm resistor and the 2 ohm resistor are in parallel with each other. The 10 volt source and the 4 ohm resistor are in parallel with each other. There are no two or more elements that are in series with each other in this circuit. हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि 1 ohm और 2 ohm का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, that is in series with the 5 ohm resistor. Yes, ये हम कह सकते हैं. ठीक है. So 3 nodes, 5 branches, the 1 ohm and 2 ohm resistor are in parallel, the 4 ohm and 10 volt source are also in parallel. But there are no elements, 2 or more elements in this circuit that are in series. So no elements in the circuit are in series with each other. Again, the same question. How many branches and nodes does the circuit have? Identify the elements that are in series and in parallel. एक node, दूसरा node, ये redundant node है, it's the same node. Third node, this is the redundant node. जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, दोबारा इसको कर लेते हैं. Basically assume करें, अच्छा मैं ज़रा color change कर लूँ अपना. Going back to red. So basically this is your 5 ohm resistor. ठीक है? This is your 10 volt source. This is your 6 ohm resistor. We can draw the circuit like this. ठीक है, और इसी तरह से आपका जो 2 एम्पेयर का जो करंट सोर्स है वो यूँ आ जाएगा. सो बेसिकली आपको क्लियरली पिक्चर मिल रही है. एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड. सो यू जस्ट हैव 3 nodes in the circuit. And how many elements do we have? 1 2 3 4 elements. ठीक है जी. Identify the elements that are in यानी 4 branches. So identify the elements that are in series and in parallel. These two are in series and these two are in parallel. ठीक है जी. Four branches and 3 nodes. 5 ohm resistor is in series with the 10 volt voltage source. The 6 ohm resistor is in parallel with the 2 ampere current source. Any questions from the class so far? Acha ji, next topic is on loops and meshes. A loop is a closed path such that no node is traversed more than once except the one where we started. Mesh is a loop that contains no other loop. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले तो लूप को देख लेते हैं. लूप इज अ क्लोज्ड पाथ सच दैट नो नोड इज ट्रैवर्स्ड मोर देन वंस एक्सेप्ट द वन वेयर वी स्टार्टेड. तो बेसिकली इफ आई फॉर इंस्टेंस यूज अ पेन, दिस इज अ लूप. ठीक है, दिस इज अनदर लूप, दिस इज येट अनदर लूप, थर्ड लूप. अच्छा, लूप की डेफिनेशन है यू ट्रैवर्स अ पाथ सच दैट नो नोड इज ट्रैवर्स्ड. ठीक है, इस नोड से स्टार्ट हुए, इस नोड पे आए, इस नोड पे आए, इस नोड पे आए और वापस एंड इस नोड पे हो गए. तो ये वाला जो नोड जिस पे हमने स्टार्ट किया था वो दोबारा आ गया. ठीक है, तो ये एक लूप की डेफिनेशन है. ठीक है, सो देयर आर 3 लूप्स हियर. अच्छा, एडिशनली वी कैन आइडेंटिफाई बेसिकली आई वुड से 3 मोर लूप्स. लेट मी चेंज माय इंक कलर. ठीक है, एक लूप ये है. ठीक है जी, एक और लूप ये वाला है, 2 और लूप्स ये हो गए. And lastly, एक third loop है. Can anybody tell me what that is? Which that is? नहीं, ये तो हो गया ना, ये वाला जो मैंने loop बनाया, एक complete वाला. Exactly, ये पूरा loop आपके पास. Exactly, एक overall loop आ गया. ठीक है, जिसके अंदर basically 2 kilo ohm resistor, 6 kilo ohm resistor, 2 kilo ohm resistor, 5 kilo, बल्कि let me pull out my pointer. ये जो overall loop बनाया है green वाला, 2 kilo ohm, 6 kilo ohm, 2 kilo ohm, 5 kilo ohm, फिर इस पूरे कॉपर वायर से गुजर के 10 वोल्ट सोर्स एंड देन बैक टू दिस नोड. तो ये जो 8K और 5 मिली एम्पियर करंट सोर्स है, इनको हमने इग्नोर किया है इस लूप में. सो दिस इज अनदर लूप. तो ये बेसिकली आपके पास 6 लूप्स बनते हैं इस सर्किट के अंदर. ठीक है, सो हाउ मेनी लूप्स? 6 लूप्स इन दिस सर्किट. अच्छा, अब हम आते हैं मैश के ऊपर. मैश इज अ लूप दैट कंटेन्स नो अदर लूप. तो इस सर्किट के अंदर अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास, कितने मैशेस हैं? एग्जैक्टली, इसके अंदर 3 मैशेस हैं.
जो कि ओरिजिनली मैंने रेड में बनाए थे 1 2 3 बिकॉज दीज आर द ओनली 3 लूप्स दैट डू नॉट कंटेन मोर लूप्स विद इन देम। बाकी जो ब्लू लूप्स मैंने बनाए हैं विच आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू बेसिकली लूप्स, जिस तरह से जो ग्रीन लूप है जो कि पूरा ओवरऑल सर्किट था, इनके अंदर बहुत सारे लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लूप्स विद इन लूप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेसिकली लूप्स और मैशेस में डिस्टिंक्शन है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि जी लूप और मैश में डिस्टिंक्शन है क्यों? वो इसलिए है कि मैश एनालिसिस एक टॉपिक है जिसको हमने आगे देखना है। इट्स बेसिकली अ प्रिंसिपल्ड एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ टू सर्किट एनालिसिस। बड़े मज़ेदार एक टेक्निक है, उसको हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। तो फिर हम देखेंगे मैश एनालिसिस या मैशेस की क्या वहाँ पे सिग्निफिकेंस है। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू बेसिक लॉज। बेसिक लॉज में हम करंट सर्किट लॉज की बात कर रहे हैं, हम एलिमेंट लॉज की बात नहीं कर रहे। बट जस्ट टू लेट यू नो और just as a review, element laws relate terminal voltages and currents of individual elements such as Ohm's law for resistors। एलिमेंट लॉ है ना, तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करेगा, मतलब या रेजिस्टर या कैपेसिटर या इंडक्टर, इनके ऊपर कुछ लॉज हैं। जैसे रेजिस्टर का हम सबको पता है, वी नो कि Ohm's law is the one that governs the relationship between the voltage across the resistor and the current through the resistor. So this is an element law. अब आते हैं सर्किट लॉ के ऊपर। What are circuit laws? Connection laws, also known as Kirchhoff's laws or circuit laws. I don't really know how to pronounce this. मैंने एक दफ़ा देखने की कोशिश की थी, but मुझे याद नहीं रहता। Anyway, so connection laws, also known as Kirchhoff's laws or circuit laws, relate voltages and currents shared at the interconnections regardless of the type of elements forming the circuit. So basically these are connection laws. And there are two such laws. The first is the Kirchhoff's current law and the other is the Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's current law establishes a relationship between all branch currents associated with a single node, and KVL establishes a relationship between all branch voltages associated with a single loop. ठीक है, वो लूप भी हो सकता है, मैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। These laws stem from charge conservation and energy conservation principles respectively. ठीक है, charge has to do with current, energy has to do with voltage. Okay, it's fine, understandable. KCL. At any instant, sum of all currents entering a node n must equal sum of all currents leaving that node. अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा नोटेशनली जो है ना वो गलत है। इसको let me change this to K, or let me just change this to P. Best. Okay. At any instant, sum of all currents entering a node P must equal sum of all currents leaving that node. ठीक है, बेसिकली अज्यूम करें ये एक सर्किट है, यहाँ पे आपके पास 3 अदर रेजिस्टर्स हैं। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। ठीक है, दिस इज योर नोड P। ठीक है, अच्छा जो लॉ है ना वो क्या कहता है जी? वो कहता है सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द नोड। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द करंट्स एंटरिंग द नोड। दिस इज क्लियरली I1 is equal to the sum of the currents leaving the node. So I2 and I3 are leaving the node. So I2 plus I3 लिख देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल लॉ। ठीक है, लेकिन बिफोर आई मूव ऑन आई जस्ट रियली वांट टू एक्सप्लेन दिस नोटेशन। गालिबन आप लोगों को पहले पता भी है, लेकिन सिग्मा इज बेसिकली ए नोटेशन। एक दफ़ा मैंने पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, इंटीग्रेशन के साथ इसका जो है एनालॉजी दी थी कि दिस इज फॉर डिस्क्रीट सिग्नल्स या सीक्वेंसेस। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिग्मा नोटेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। सिग्मा को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वी राइट इट एज k equals 0 to n. n is the total number of instances that we want to sum up. ठीक है, और in यहाँ पे इसका सबस्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं in। इसको हम यूं कर लेते हैं in, जिस तरह लिखा हुआ है ऊपर in। ठीक है, कॉमा k। ठीक है, k जो है ना बेसिकली इज अ सबस्क्रिप्ट। इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो इसको इस तरह से लिखूंगा in कॉमा 0 प्लस in कॉमा 1 प्लस ऑल द वे टू प्लस in कॉमा, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे लिखी है।
सो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, जिस तरह बिल्कुल इंटीग्रेशन में होती है, दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है. सो दिस इज हाउ वी, दिस इज दिस नोटेशन एक्सप्लेन. सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन द नोटेशन दैट आई हैव डन हियर. ठीक है, तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई इन के आगे कॉमा एन के लिखा होना चाहिए, बट बल्कि ये इसको मैं इस यानी इसको ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी नोटेशन एक्सप्लेन की है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस इज हाउ वी राइट द सिग्मा नोटेशन, बट लूजली स्पीकिंग, या व्हेन यू वांट टू वायोलेट सम नोटेशन यू कैन, इट इज अलाउड, इट इज फॉर्मली आल्सो डन. आप ये कर सकते हैं कि ये k इक्वल 0 टू n को गायब करें और सिंपली यहाँ पे n लिख दें. ठीक है, ये भी किया जा सकता है. इसका मतलब इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्ट हैंड फॉर टेलिंग यू कि जी यू नाउ हैव टू सम अप ऑल दोज आई इन्स starting from I in 0 all the way to I in n. ठीक है, ये this is fine, this is allowed, ये किया जा सकता है. So what is written on this slide is fine. ठीक है. अच्छा, now coming back to the law. At any instant, sum of all currents entering a node P must equal sum of all currents leaving that node. Stated in another way, the algebraic sum of the currents entering any node is 0. अच्छा, अब वो unfortunately discard हो गया है क्योंकि ये बहुत important point है. Let's see कि हम जो कर रहे थे, basically this was I1, this was I2, this was I3. Sorry for the writing. So sorry for the bad writing rather. I1 हमने कहा था जी is equal to I2 plus I3. ठीक हो गया, ये तो चीज़ हो गई. अच्छा, ये जो पहला लॉ है ना, ये है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है. एट एनी इंस्टेंट सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ नोड P व्हिच इज I1 मस्ट इक्वल सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट नोड व्हिच इज I2 प्लस I3. जो दूसरा है इसको हम देख लेते हैं. द अल्जेब्रिक सम ये होता है कि इसके अंदर एक साइड पे ही सारा का सारा सम है ऑफ द करंट्स एंटरिंग एनी नोड इज 0, दूसरे साइड पे 0 है. तो करंट्स एंटरिंग अ नोड क्या है जी, I1 इज एंटरिंग अ नोड. ठीक हो गया. अच्छा, दूसरे साइड पे बिकॉज I2 इज लीविंग द नोड, ये नोड है. ठीक है, I2 इज लिविंग द नोड, तो माइनस I2 मस्ट बी एंटरिंग द नोड. ठीक हो गया. ऑब्वियसली अगर I2 इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस I2 होगा ऑब्वियसली. प्लस अगर I3 इज लिविंग द नोड, तो दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस I3 होगा. ठीक है, सो वी शुड राइट माइनस I3 हियर. ठीक है, सो दिस बिकम्स I1 माइनस I2 माइनस I3 equals 0, which is basically the same as ये वाली स्टेटमेंट जो थी. ठीक है, तो आप इस तरह लिखना चाहें या इस तरह लिखना चाहें, बात एक ही है. ठीक है, बट यू शुड नो बोथ मेथड्स बिकॉज यू नो इट्स इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, दूसरा जो लॉ है किर्चॉफ्स करंट लॉ, विच नहीं, एक मिनट, यही लॉ है ये, अभी तक हम केवीएल पे आए नहीं है. अच्छा, फर्स्ट यू लेबल, अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, you first must label all branch currents and indicate their reference directions via arrows. ठीक है, सबसे पहले आपने ब्रांच करंट्स बता दिए. I1 ऊपर, I3 नीचे, I5 नीचे, I6 नीचे, I4 I2. अच्छा, अब बिकॉज यू नो हमने अभी तक सर्किट को एनालाइज नहीं किया इन द सेंस कि अभी तक हमने सर्किट के ब्रांच वोल्टेजेस और ब्रांच करंट्स फाइंड नहीं किए हुए. ठीक है, वी आर ओनली लेबलिंग द सर्किट राइट नाउ. एंड जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में बात हुई थी कि लेबल जब हम करते हैं ना, तो मैंने अगर I4 इस तरह लेबल किया है, तो आपके जो साथ वाला है उसने I4 जो है दूसरी डायरेक्शन में लेबल किया हो सकता है. ठीक है, तो अगर इम्तिहान में उसकी कॉपी आपको दिख भी जाए ना, तो उसकी आपने चीटिंग नहीं कर लेनी है ब्लाइंडली. पहले ये तो देख लें कि उसकी जो है वो लेबलिंग हुई कैसे है. तो लेबलिंग अपनी मैच कर लें, उसके बाद बाकी बेशक चीटिंग कर लीजिएगा. तो कहने का मकसद ये है कि चीटिंग भी ज़रा इंटेलिजेंटली करें अगर करें तो. ठीक है, तो अगर I4 उसने डिफरेंट डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो आपका सारा जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा, कॉपी ही गलत हो जाएगी. ठीक है ना, कॉपीइंग गलत हो जाएगी आपकी. एनीवे, तो इट इज इक्वली, यानी इट्स फाइन टू लेबल इट इन दैट डायरेक्शन, इट्स आल्सो फाइन टू लेबल इट इन दिस डायरेक्शन, बट विच एवर डायरेक्शन यू वांट टू लेबल इट, सब्सिक्वेंटली जब आप लॉ फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, वो अकॉर्डिंगली उस तरह से अप्लाई होगा. सो फर्स्टली यू हैव टू लेबल ऑल ब्रांच करंट्स एंड इंडिकेट देयर रेफरेंस डायरेक्शंस. उसके बाद फॉर अननोन करंट assume a reference direction and use KCL to find its value. ये वही बात है जो अभी मैंने की है. For an unknown current, for instance, I4 is unknown. In practice, usually all the currents are unknown. You know, assume a reference direction. हमने assume कर लिया जी I4 इस direction में है. उसके बाद you use KCL, KVL, Ohm's law, you use all them laws to find all these values. ये थोड़ा सा ना मैं एक वो कर लेता हूँ यहाँ पे. अच्छा, बहरहाल चलें, खैर इसको मैं देख लूँगा बाद में. KCL, KVL
ओम्स लॉ एटसेट्रा टू फाइंड इट्स वैल्यू। मतलब बेसिकली आपने सारे लॉज अप्लाई करके सर्किट को एनालाइज कर लिया, सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। If it comes out to be positive, our choice of direction was correct, and vice versa. So अगर I4 की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है तो फिर इसका मतलब हमारी चॉइस ऑफ डायरेक्शन ठीक थी, अदरवाइज वो गलत है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जिस तरह पहले भी आज के लेक्चर में शुरू में मैंने बात की थी। अच्छा, अब हम लगाते हैं KCL। KCL के लिए जितने भी नोड्स हैं सबसे पहले तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, नोड A B C D, राइट, ABCD। ठीक है, 4 नोड्स थे हमारे पास, तो ABCD। नोड A के ऊपर सबसे पहले अगर हम KCL अप्लाई करना चाहें, सो I1 एंटर हो रहा है, I2 एग्जिट हो रहा है। सो I1 जितने भी एंटर हो रहे हैं वो एक साइड पे, जितने भी एग्जिट हो रहे हैं वो दूसरी साइड पे। ठीक है, उसके बाद नोड B पे I2 एंटर हो रहा है, I4 एंड I3 आर एग्जिटिंग, सो I3 एंड I4 दूसरी तरफ चले जाएंगे। नोड C के ऊपर I4 एंटर हो रहा है, I5 और I6 एग्जिट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नोड D पे I1 is exiting, I3, 5 and 6 are entering। तो I3, 5, 6 एक साइड पे, I1 दूसरे साइड पे इक्वेशन के। ठीक है, अच्छा, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाइज नॉट ओनली टू नोड्स, मतलब इंडिविजुअल नोड्स के ऊपर सिर्फ ये अप्लाई नहीं, लाजमी नहीं हो, but also to entire portions of circuits, closed boundaries, that is closed paths. For instance, because an AC appliance cannot create or destroy charge, the algebraic sum of the currents flowing down its three-pronged power cord must at all times be zero. कहने का मकसद ये है कि if you consider this circuit and if you think of this everything within this black box or this dotted line as a black box that you don't really want to analyze immediately, so you can just look at the currents, that the algebraic sum of the currents entering this black box. So I1 enters it, I3 enters it, I2 and I4 exit, right? So you can say I1 minus I2 plus I3 minus I4 equals 0. So this is the algebraic sum of all the currents entering this black box. So I1 enters, similarly minus I2 enters, similarly I3 enters, and minus I4 enters. So all of them are entering equals 0. इसको जब हम यानी subsequently solve कर सकते हैं I1, I2, I3, I4 के लिए, but the point is that KCL applies to closed boundaries as well. ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ते हैं, और उसका फिर एक थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है विच इज़ कॉल्ड सुपर नोडल एनालिसिस, या सुपर नोड्स को एनालाइज करने का क्या तरीका है। वहाँ पे हम देखेंगे कि सुपर नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, उसके अंदर जो एक एयर कंडीशनिंग अप्लायंस है उसको वी आर कंसिडरिंग दैट एज अ ब्लैक बॉक्स, और उस अप्लायंस के अंदर जितना करंट जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है बाहर। ठीक है, बस इतनी सी बात है जो इस एग्जाम्पल में दी गई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यूज KCL टू डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ द अननोन करंट्स शोन इन फिगर 1.21। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, 1 एम्पियर और 3 एम्पियर दोनों ऐड हो जाएंगे, यू गेट 4 एम्पियर्स गोइंग डाउन एज IA। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेसिकली हमने IB फाइंड करना है। सो 3 एम्पियर्स, 1 एम्पियर्स, 4 एम्पियर्स आर एंटरिंग द नोड एंड 2 एम्पियर्स आर लीविंग द नोड। सो obviously minus 2 amperes has to leave this node in this direction as well. So IB comes out to be नहीं, एक मिनट, 2 amperes इस डायरेक्शन में जाएगा, IB comes out to be minus 2 amperes। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, यू कैन ऑल्सो डू इट मैथमेटिकली करना चाहे तो 3 + 1 + IB - 2 = 0। ठीक है, -2 क्यों? क्योंकि अगर 2 एग्जिट हो रहा है तो -2 एंटर होगा। तो इफ आई लुक एट द algebraic sum of all the currents that enter this single node, by the way this is the same node, ठीक है, तो फिर 1 + 3 + IB - 2 = 0, and then you will find that IB comes out to be -2 amperes। इसी तरह से आपके पास 4 + 3 + 1 एंटर हो रहा है, तो IC जो एंटर हो रहा होगा that has to be -8। जी सॉरी, देयर इज अ क्वेश्चन। नहीं, ये डायरेक्शन बिल्कुल गलत नहीं है। असल में देखें, द पॉइंट इज दैट दिस इज अ लेबल्ड डायरेक्शन। तो जैसे हमने पहले भी बात की थी, एक दफ़ा जब हमने लेबलिंग कर ली है तो वी डोंट से कि जी ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 + 3 + IB - 2 = 0, क्योंकि अगर 2 एम्पियर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कितना होगा? -2 एंटर हो रहा होगा। तो algebraic sum of all the currents entering a node = 0, या फिर exiting a node = 0 भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर हम IB की वैल्यू निकालें, it comes out to be 2 - 4 = -2। So IB comes out to be -2 amperes। ठीक है, -2।
अब ये जो माइनस है ना, हमें ये बता रहा है, ये वाला जो माइनस है हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि IB जो एक्चुअल करंट है ना इस नोड से जो एग्जिट हो रही है इस ब्रांच के अंदर, वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में है। बस इतनी सी बात, ये हमें माइनस साइन बता रहा है। तो इससे हम ये नहीं कहते कि IB की जो लेबल है वो डायरेक्शन गलत दी हुई है, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि IB इज सिंपली -2। माइनस खुद ये बता रहा है कि डायरेक्शन दूसरी सिम्थ में होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आई डोंट नो हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट। ओके, क्योंकि अगेन ये थोड़ा सा रीइंफोर्स हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, ये कॉन्सेप्ट आस्ता आस्ता ये चीज़ और सॉलिडिफाई हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे बेसिकली 3 and 4 एम्पेयर्स एज वेल एज 1 एम्पेयर्स एंटर द नोड। ठीक है, तो सारी बात है, अगर 8 एम्पेयर्स एंटर हो रहे हैं तो 8 एम्पेयर्स को निकलना भी उसी नोड से। तो IC जो है इट विल कम आउट टू बी -8 एम्पेयर्स। ठीक है, क्योंकि -8 उस डायरेक्शन में जाएगा जी। नहीं, देर इज़ नो नीड, बिकॉज हमने ऑलरेडी माइनस स्पेसिफाई किया हुआ है। मतलब जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो आप लिखेंगे -2 एम्पेयर्स। ठीक है, और एक खूबसूरत सा डब्बा बनाएंगे उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि दिस इज द सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, टू योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये डब्बा ज़रूर बनाना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा हुआ मैंने बोल दिया, बार बार बता भी दूंगा। डब्बा नहीं बनाएंगे ना, नंबर नहीं दूंगा। तो IB इक्वल्स -2 एम्पेयर्स। ये माइनस जो है ना, ये आपको यही बता रहा है कि यू नो द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू चेंज द डायरेक्शन एंड इफ यू से अच्छा इसको काटते हैं, इसकी डायरेक्शन यूं कर देते हैं, तो फिर आपको IB +2 एम्पेयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, बट अगेन दैट इज नॉट रियली रिक्वायर्ड। IB की जो ओरिजिनल हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी, दैट इज फाइन। यू सिंपली नीड टू से IB इक्वल्स -2 एम्पेयर्स। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यानी दीगर करंट क्या है। बेसिकली अभी यहाँ पे हो ये रहा है कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 3 एम्पेयर 4 एम्पेयर और बेसिकली 4 एम्पेयर 8 एम्पेयर एंटर कर रहा है नोड के अंदर। तो कहीं ना कहीं से नोड से एग्जिट भी होना है, जाहिर बात है। तो इसलिए एग्जिट जो है, अगर तो IC की डायरेक्शन हमने ये बनाई होती ना, तो हम कहते हैं कि जी 8 एम्पेयर, IC इक्वल्स 8 एम्पेयर यानी +8 एम्पेयर हम कहते हैं। लेकिन क्योंकि IC की डायरेक्शन वो बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसलिए हम सिंपली ये कहेंगे कि जी IC इक्वल्स -8 एम्पेयर। ठीक है, तो ऑलरेडी जो डायरेक्शन, ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पे लेबलिंग हुई है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं प्लस या माइनस। बट इसमें कोई जनरल रूल नहीं है कि जी एग्जिट का मतलब नेगेटिव या एंटर का मतलब पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। रेफरेंस डायरेक्शंस कैन बी इंडिकेटेड बाय लेबलिंग। अच्छा, ये आई गेस वही सारी बात है। रेफरेंस डायरेक्शंस कैन बी इंडिकेटेड बाय लेबलिंग द एंड्स ऑफ circuit elements and using double subscripts on current variables. The reference direction for IAB points from A to B. Basically, अगर आपके पास एक एलिमेंट है जिसके 2 टर्मिनल्स हैं लेबल्ड A and B, तो आप इस डायरेक्शन में जो एरो है उसको कह सकते हैं IAB, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो है उसको हम कह सकते हैं IBA। एंड क्लियरली IBA इक्वल्स टू -IAB। एनीवे, छोटा सा एक माइनर सा पॉइंट था, यू कैन मूव ऑन। इसी तरह से वोल्टेज में अगर ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, तो अगर ये यहाँ पे हम प्लस रखते हैं, मतलब DMM की पॉजिटिव प्रोब इधर रखेंगे, नेगेटिव प्रोब इधर रखेंगे, तो यू विल गेट VAB। ठीक है, अगर DMM की पॉजिटिव प्रोब इधर रखेंगे, नेगेटिव प्रोब इधर रखेंगे, तो द क्वांटिटी दैट यू आर गेटिंग इज एक्चुअली VBA। ठीक है, एंड VAB इज इक्वल टू -VBA।